गुजरात के अमरेली जिले के खांभा तालुका के ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के अमरेली में एसटी बसों की अनियमित सेवाओं के कारण छात्रों को स्कूल कॉलेज आने जाने में परेशानी हो रही है। इस मुद्दे को लेकर छात्रों ने खांभा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। खांभा JN मेहता हाई स्कूल के छात्रों ने एसटी बसों की अनियमितता को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। राजूला खांभा, राजूला और धारी खांभा लासा रूट की एसटी बसें समय पर नहीं चल रही हैं, जिससे छात्रों को अपनी पढ़ाई में बाधा आ रही है। लासा धारी खांभा लासा 1 મહિનાથી બંધ હોવાથી અમારે સ્કૂલેથી છૂટ્યા બાદ અમારે ઘણો સમય સુધી બેસવું પડે છે અને અમારે બસ બંધ હોવાથી અમારે અભ્યાસ છોડીને આવવું પડે છે અને અમારે સ્કૂલેથી છૂટ્યા બાદ અમારે ઘરે જવા માટે તગડી રકમ દઈને અમારે રિક્ષામાં જવું પડે છે અને અકસ્માત થાય તો કોણ જવાબદાર રહેશે એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે સરકારને કે અમારી બસ સમયસર ચાલુ કરાવે। અમારે 12:30 રજા પડે ત્યારે પણ અમને બસ નથી મળતી, અમારે પ્રાઇવેટ વાહનમાં જવું પડે છે અને પ્રાઇવેટ વાહનમાં એક્સિડન્ટ થાય કે જોખમ લે તો જવાબદાર કોણ રહે? એટલા માટે છે ને તમે 12:30ની બસ અમારે એસટી બસ ચાલુ કરાવો। અનિયમિત છે પણ તમે નિયમિત કરાવો એવી અમારી રજૂઆત છે, નહીંતર અમે છે ને રોડ રસ્તા બંધ કરીને અમે आंदोलन करशुं। चुनाव का साल है, एक ही साल चुनाव में बचा है, कुछ ही महीने बचे हैं ऐसे कहा जा सकता है और ऐसे में वडोदरा के विकास को तेजी दे दी गई है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा अलग अलग विकास कार्यों को शुभारंभ किया जा रहा है। उन्हीं में से कुछ विकास कार्यों का आज भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है, जिसमें फायर स्टेशन का लोकार्पण, आर्ट गैलरी का लोकार्पण और अलग अलग सारे जो विकास कार्य है उसका शुभारंभ हुआ है। રૂપિયા 331 કરોડના ખર્ચે થવા જઈ રહ્યા છે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના કુલ 61 પ્રકલ્પોના ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ, જેમાં રૂપિયા 295 કરોડના 46 પ્રકલ્પોના ખાતમુહૂર્ત અને રૂપિયા 35 કરોડના 15 પ્રકલ્પોના લોકાર્પણ સામેલ છે। આ લોકાભિમુખ કામોમાં સામેલ છે રૂપિયા 5 કરોડ 80 લાખના ખર્ચે બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ દ્વારા બદામડી બાગ ખાતે નવીન તૈયાર થયેલ ફાયર સ્ટેશન તથા નવીન આર્ટ ગેલેરીનું લોકાર્પણ, તેમજ રૂપિયા 39,86,000ના ખર્ચે દીપક ઓપન એર થિયેટરનો વિકાસ કરીને નવીન તૈયાર થયેલ અતિથિ ગૃહનું લોકાર્પણ, તેમજ 1 કરોડ 12 લાખના ખર્ચે બાપોદ ખાતે નવીન તૈયાર થયેલ અત્યાધુનિક સુવિધાઓ સભર અર્બન પ્રાઇમરી હેલ્થ સેન્ટરનું લોકાર્પણ, રૂપિયા 3 કરોડ 40 લાખના ખર્ચે ઉર્મી સ્કૂલ 4 રસ્તાથી હરણી ટાંકી સુધીના નવીન 600 મિલીમીટર ડાયામીટરની HS ફીડર નળિકા નાખવાના કામનું લોકાર્પણ, રૂપિયા 6 કરોડ 48 લાખના ખર્ચે પાણીગેટ શાક માર્કેટથી ઝાલા કમ્પાઉન્ડ APS સુધી ટ્રેન્ચલેસ પદ્ધતિથી તૈયાર થયેલ ડ્રેનેજ લાઇનનું તેમજ તરસાલી TP 38 ખાતે નવીન ડ્રેનેજ નેટવર્કનું લોકાર્પણ, રૂપિયા 5 કરોડ 26 લાખના ખર્ચે ઉંડેરા ગોત્રી ખાતે નવીન RCC વરસાદી ચેનલ, ગોત્રી હોસ્પિટલ સાઈ મંદિર પાસે નવીન વરસાદી ચેનલ તેમજ કુતરાવાડી કલવર્ટથી મહાદેવનગર સુધી નવીન તૈયાર થયેલ વરસાદી ચેનલનું લોકાર્પણ, મિકેનિકલ શાખા દ્વારા રૂપિયા 4 કરોડ 47 લાખના ખર્ચે ખરીદેલ કુલ 10 નંગ ગાર્બેજ કોમ્પેક્ટર મશીન તેમજ રૂપિયા 1 કરોડ 91 લાખના ખર્ચે નવીન ખરીદેલ 3 પેવર ફિનિશર મશીનનું લોકાર્પણ, રૂપિયા 4 કરોડ 60 લાખના ખર્ચે સયાજી બાગમાં ફૂડ સ્ટોરેજ બિલ્ડિંગ, વુલ્ફ જેકલ, હાયના ક્વોરન્ટાઇલ કેજીસ, મેમલ કેજ ઓફ ડિસ્પ્લે, બર્ડ બ્રીડિંગ કેજીસ જેવી સુવિધાઓનું લોકાર્પણ, પાર્ક્સ એન્ડ ગાર્ડન વિભાગ દ્વારા મોટી બાપોદ તળાવ ખાતે રૂપિયા 95 લાખના ખર્ચે તૈયાર થયેલ નવીન ઓક્સિજન પાર્ક, રૂપિયા 41 લાખના ખર્ચે વારસિયા ખાતે મિયાવાકી ગાર્ડનનું તેમજ રૂપિયા 39 લાખના ખર્ચે TP3 ફાઇનલ પ્લોટ 585 ખાતે નવીન બગીચાનું લોકાર્પણ। આ ઉપરાંત આજે વિકાસના કુલ 46 નવીન પ્રકલ્પોના ખાતમુહૂર્ત પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં સામેલ છે નવીન રસ્તાઓ, ફૂટપાથ અને રસ્તાઓ પહોળા કરવાના રૂપિયા 76 કરોડ 35 લાખના ખર્ચે રોડના કુલ 18 પ્રોજેક્ટ્સ, રૂપિયા 65 કરોડ 81 લાખના ખર્ચે સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગના કુલ 3 પ્રોજેક્ટ્સ, રૂપિયા 64 કરોડ 51 લાખના ખર્ચે પાણી પુરવઠાના કુલ 14 પ્રોજેક્ટ્સ, રૂપિયા 53 કરોડ 53 લાખના ખર્ચે બિલ્ડિંગ વિભાગના કુલ 4 પ્રોજેક્ટ્સ, રૂપિયા 14 કરોડ 79 લાખના ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટના 3 પ્રોજેક્ટ્સ, રૂપિયા 20.33 કરોડના ખર્ચે વરસાદી ગટર નાખવાના 4 પ્રોજેક્ટ્સ। વડોદરા विकासनी नवी दिशा। वडोदरा के फायर ब्रिगेड को कुछ और नए संसाधन मिलने जा रहे हैं। आप देखिए, बदामड़ी बाग में
अत्याधुनिक फायर स्टेशन और साथ ही स्वामी विवेकानंद आर्ट गैलरी तैयार की गई है और वडोदरा महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड विभाग को कुछ और व्हीकल्स की भेंट मिल रही है। जो संसाधन है वो भेंट स्वरूप दिए गए हैं। वडोदरा के नागरिकों को वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी हमारे साथ है। सर, वडोदरा को सुविधाएं देने की कोशिश वडोदरा महानगर पालिका की ओर से क्या कहेंगे? वडोदरा के अंदर आगामी दिनों में फिर वो वडोदरा का ब्यूटिफिकेशन हो, वडोदरा की जो मूल जरूरियात हो या वडोदरा को विकास के नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रकल्प हो, वह सारे प्रकल्प और जो माननीय वड़ा प्रधान श्री बोलते हैं विकास भी विरासत भी, वैसे हमारे विरासत को भी संवारने के प्रकल्प जैसे ऐसे 331 करोड़ से भी ज्यादा कार्यों के आज खातमुहूर्त और लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया है और उसमें सबने साथ में मिलकर विकसित वडोदरा से विकसित भारत बनाने के लिए सबके बीच में बात रखी है। गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 331 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है, जिसके तहत वडोदरा के बदामड़ी बाग में फायर स्टेशन और साथ ही एक आर्ट गैलरी का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे वडोदरा शहर को सुचारू फायर सुविधा मिलेगी और साथ ही वडोदरा के आर्टिस्ट को एक गैलरी की भी भेंट मिल रही है। आज वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कुल मिलाकर 331 करोड़ से भी ज़्यादा की कीमत के अलग अलग कार्यक्रम यानी प्रकल्पों की खातमुहूर्त और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं वडोदरा महानगर पालिका के सभी चुने हुए प्रतिनिधि एवं वहीवटी तंत्र को आभार व्यक्त करता हूं और साथ में हम जहां अभी खड़े हैं ये आर्ट गैलरी जो वडोदरा की एक पहचान होने जा रही है, तो सभी नागरिकों भी विनती करता हूं कि ये आर्ट गैलरी में आए ताकि जो भी एग्जीबिशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म कॉर्पोरेशन ने दिया है वो भी अपने आप में एक अलग है, तो उसके लिए भी कॉर्पोरेशन को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। देर आए पर दुरुस्त आए। वडोदरा के आर्टिस्ट पिछले कई सालों से वडोदरा शहर कला नगरी में कला को बढ़ावा देने के लिए आर्ट गैलरी की मांग कर रहे थे, जो सालों बाद आखिरकार बदामड़ी बाग में बनकर तैयार है और आज इसका शुभारंभ कर दिया गया है, जिससे कला नगरी में कला को बढ़ावा मिलेगा। इस आर्ट गैलरी के निर्माण को लेकर कई तरह के विवाद हुए, लेकिन आखिरकार आर्टिस्ट को थोड़ा बहुत साथ रखकर थोड़ा बहुत अपने तरीके से वडोदरा महानगर पालिका ने इस आर्ट गैलरी को तैयार कर ही दिया है और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि वडोदरा के आर्टिस्ट जो है आर्ट गैलरी का किस तरह इस्तेमाल कर कला नगरी को विश्व फलक पर आगे ले जाते हैं। चलिए, वडोदरा आर्टिस्ट परिवार के फाउंडर पुलकित दवे हमारे साथ हैं और आखिरकार आर्ट गैलरी सालों बाद आर्टिस्ट को मिली है, वडोदरा शहर के कलाकारों को मिली है। कितनी खुशी है। आखिरकार बहुत सालों की आपकी लंबी लड़ाई के बाद आप लोगों को एक आर्ट गैलरी आज भेंट मिली है, क्या कहेंगे? बड़े खुशी की बात है। बड़ौदा शहर में 2018 में तोड़ी गई थी आर्ट गैलरी विनोद राव जी के समय में, उस टाइम पे वो म्युनिसिपल कमिश्नर थे और बड़े आनंद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज 2025 में दिलीप राणा जी ने हमें आर्ट गैलरी दी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र पटेल, एक्स एमएलए सीमा मोहिले मैडम, दिलीप राणा सर, म्युनिसिपल कमिश्नर अभी के और शीतल मिस्त्री के सहयोग से ये आर्ट गैलरी मिली है। आने वाले दिनों में बड़ौदा में जितने भी कला रसिकों हैं वो देख सकेंगे, बाहर के कलाकारों भी एग्जिबिट कर सकेंगे। बड़ौदा कला नगरी है तो जाहिर सी बात है कि एवरी आर्टिस्ट हैज एन इंट्यूजन कि भाई मैं कहीं ना कहीं मैं एग्जिबिट कर सकूं, और ये एक आर्ट गैलरी ऐसी है कि गुजरात के सेकंड नंबर पे आती है ऐसी आर्ट गैलरी और इतना सारा एम्बियंस स्मार्ट आर्ट गैलरी का प्रोविजन दिया गया है। तो कला नगरी के वती और वडोदरा आर्टिस्ट परिवार का फाउंडर होने के नाते मैं ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, दो चीज़ ऐसी है कि लिफ्ट और आने वाली एंट्रेंस के लिए कॉरपोरेशन अभी विद इन शॉर्ट टाइम कुछ करने वाली है, तो वो इट्स इन प्रोसेस और आई एम थैंकफुल टू वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये पूरा एग्जीबिशन वडोदरा के 29 आर्ट फोटोग्राफरों ने वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को डेडिकेट किया है। थैंक्स अ लॉट। पार्किंग की एक दिक्कत थी क्या, वो सॉल्व की गई है?
दिक्कतें थी वो जो भी स्टेज पे आया तभी उन्होंने सॉल्व करके दी हमने, और दिसंबर से लेके फरवरी तक मैं फाइनल स्टेज जब भी आर्ट गैलरी का हुआ तो मैं इनके साथ टच में था। वैसे तो 2018 से लेके 2025 तक जहाँ जहाँ पे मुख्यमंत्री कार्यालय हो या कोई भी जगह पे निवेदन की प्रक्रिया भी थी, उसमें मैं कंप्लेनेंट था और मैं मेरे खुद के एक्सपेंस से मैं लड़ा हूँ। और आज मुझे गर्व होता है कि मैं कुछ ना कुछ बड़ौदा शहर के लिए इतनी छोटी उम्र में कुछ दे पाया हूँ, इससे मुझे गर्व होता है। और आनंद की बात यह है कि बड़ौदा शहर के जितने भी आर्ट फोटोग्राफर है उनका आर्ट एग्जिबिट होके मैं पुलकित हो रहा हूँ, यही पुलकित दवे की इच्छा है। थैंक यू। वडोदरा में लंबे अरसे से एक सिटी के अंदर फायर स्टेशन बनाने की मांग की जा रही थी। दंडे बाजार का फायर स्टेशन टूटने के बाद अब यहाँ एक फायर स्टेशन बनाया गया है और साथ ही आर्ट गैलरी की भेंट वडोदरा कला नगरी वडोदरा को मिली है। ऐसे में ये दोनों सुविधाएं वडोदरा शहर के लोगों को काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। मैंने पहले ही कहा इलेक्शन का साल है और इलेक्शन के साल में वडोदरा के नागरिकों का दिल जीतने की पूरी कवायद वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शुरू कर दी गई है और उसी के तहत विकास कार्यों को तेजी से संपन्न किया जा रहा है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का वीएनआम टीवी के लिए। जब एक महिला सशक्त होती है तो सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलता है बल्कि समाज भी आगे बढ़ता है। सशक्त नारी सिर्फ एक पहचान नहीं है बल्कि समाज में बदलाव की प्रेरणा होती है, क्योंकि वो हर बंधनों को तोड़कर नई इबारत लिखती है। चाहे फिर अंतरिक्ष की ऊंचाइयां हो, खेल का मैदान हो, कॉरपोरेट की दुनिया हो, महिलाएं अपनी काबिलियत से हर क्षेत्र में इतिहास रच रही हैं। और इसी बदलाव को और भी ज़्यादा गति देने के लिए बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस वक्त हम वडोदरा के तारासंस में मौजूद हैं, जहां बीएमए की वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी द्वारा एक खास वुमेन कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन ऑन मिशन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि ये आयोजन उन महिलाओं को सम्मान और पहचान देने के लिए समर्पित है जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से हर चुनौती को अवसर में बदलकर समाज में एक नई पहचान बनाई है। बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा वुमेन कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन ऑन मिशन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं के योगदान को पहचान देना और उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करना था। इस कार्यक्रम में ऑस्कर नामांकित फिल्म लापता लेडीज की लेखिका और एवरेस्ट की ऊंचाइयां छूने वाली साइकिलिस्ट सहित कई जानी मानी हस्तियां शामिल रही। उन्होंने अपने संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानियां साझा की, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश साबित हुई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की नेतृत्व क्षमता, सामाजिक बाधाओं को तोड़ने की उनकी हिम्मत और समाज में बदलाव लाने की उनकी भूमिका पर गहन चर्चा हुई। यह आयोजन न केवल प्रेरणा का स्रोत बना बल्कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान किया गया। तो चलिए अब बीएमए की चेयरपर्सन डॉक्टर मंगला चौहान से जानते हैं इस आयोजन के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से। तो मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज के इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अच्छे इवेंट को जो वुमेन कॉन्फ्रेंस, इसका उद्देश्य एक ही है कि आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन ऑन मिशन, दैट मीन्स कि जो एम्पावर्ड वुमेन है, जो ऑलरेडी सशक्त महिला है, वो इस डायस पे आ रही हैं। जो दूसरी महिलाएं हैं जो उस जर्नी में है, एम्पावर होने की जर्नी में है, उनको ये बताने के लिए कि उन्होंने क्या चैलेंजेस लाइफ में लिए, क्या बैरियर ब्रेक किए, किस तरीके से उनको कठिनाइयाँ आई, उनको जो जीवन में पाना था वो किस कठिनाइयों के बाद उन्होंने प्राप्त किया है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन की वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी दे रही है। मेरी टीम आप देख सकते हैं मेरे साथ है, क्योंकि किसी भी आयोजन को सफल बनाने में उसकी पूरी टीम का योगदान होता है। तो मेरी टीम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जो इसमें स्पीकर आ रहे हैं उसमें लापता लेडीज जो ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी है उसकी राइटर हैं निशा कुमारी, जो हमारे वडोदरा का गर्व है, गौरव है, साइकिलिस्ट एवरेस्टर है, वो हैं। स्पीकर्स भी जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के हैं जैसे इसरो के हैं, जो इसरो के नासा के साथ कोलेबोरेशन करके जो प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं लेडीज़। IIM अहमदाबाद की प्रोफेसर्स हैं। देन बहुत सारे और भी, आप जैसे जैसे ये आयोजन आगे बढ़ता जाएगा आपको विस्तार से सब चीज़ें पता चलते जाएंगी। और इसका मुख्य उद्देश्य यही कि बड़ौदा में महिलाओं में टैलेंट की कमी नहीं है, सशक्तिकरण की आवश्यकता
उस स्तर पर नहीं है। बस उनको सिर्फ ये बताना कि उनमें जो ऑलरेडी हिडन पोटेंशियल है उनको किस तरीके से और आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि आज आप देखेंगे तो बड़ौदा की जो हमारी बेटियां हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी हैं। तो वो प्लेटफॉर्म, ये सब चीज़ें जो ऑलरेडी पहुंची हुई, जो इंडिया लेवल से हैं, उनको बड़ौदा की महिलाओं से कनेक्ट करने के लिए तो आपसे निवेदन है कि आप जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आ रहे हैं उनसे भी पूछिए कि उनको हमारे बड़ौदा आके कैसा लगा, और यहाँ पर जो इतने अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से महिलाएं हैं, उनको कैसा लगा। तो आप इसे यही निवेदन, और आप खुद एक महिला हैं जो एम्पावरमेंट की मिसाल है, तो आपका बहुत बहुत हम भी स्वागत करते हैं हमारे इस आयोजन में। आपने ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लापता लेडीज़ का नाम तो सुना होगा। एक ऐसी फिल्म जिसने हर दिल पर राज किया, और आज हमारे साथ वडोदरा शहर में इस फिल्म की लेखिका स्नेहा देसाई जी मौजूद हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी उनकी जर्नी। तो मैम, सबसे पहले हमें ये बताइए कि वडोदरा में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ौदा इज सेकेंड होम टू मी, मेरा ससुराल है। सो आई बीन कमिंग टू बड़ौदा सिंस क्वाइट अ फ्यू ईयर्स। बहुत सारे शोज़ मैंने यहाँ पर किए हैं, और गुजरात का बहुत ही अपकमिंग सिटी है, सो इट ऑलवेज फील्स वंडरफुल टू कम हियर। तो अभी हाल ही में आपकी रिटन फिल्म और लापता लेडीज़ ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म, तो कैसा फील हुआ कि आपने जिस फिल्म को अपने शब्दों से निखारा और वो ऑस्कर तक जब गई? आई कैन ओनली से दैट आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, क्योंकि बहुत मेहनत की थी मैंने, पूरी टीम ने इस फिल्म के लिए, और ये मेरी डेब्यू फिल्म थी। तो अपनी डेब्यू फिल्म का ऑस्कर के लिए चुना जाना, ऑस्कर की एंट्री के लिए चुना जाना, बहुत ही वाकई में हमारे लिए बड़ी बात थी। सो वेरी वेरी डिलाइटेड। हालांकि अब हम ऑस्कर के रनिंग में से बाहर हो चुके हैं, पर भारत देश में इतनी सारी फिल्म्स बनती हैं, इतनी भाषाओं में बनती हैं, इतने अलग अलग किस्म की फिल्म्स बनती है, उसमें से हमारी फिल्म का चुना जाना हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी। लापता लेडीज़ का जो मैसेज था वो बेहद यूनिक था, तो इसका विचार कैसे आया कि ऐसा भी कुछ हम दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? विमेन एम्पावरमेंट की बात थी, फेमिनिज्म की बात थी, पर एक बात तय थी कि हमें कुछ भी प्रीच नहीं करना था, किसी किस्म का लेक्चर नहीं देना था। तो कैसे हमें दिल को जो छू जाती है, हमारे दिल को छू जाती है, वैसी कोई बात हम एक एंटरटेनिंग माध्यम से कह सके, वो हमारा प्रयास था। और लापता लेडीज़ में इतने अच्छे अच्छे प्यारे किरदार हैं, इतनी लेडीज़ हैं कि उन हर एक लेडी कैरेक्टर के बैक स्टोरी में से बहुत प्यारी बातें हम दर्शकों तक पहुंचा सके। सो येस, देयर वर अ लॉट ऑफ मैसेजेस दैट वी वांटेड टू कन्वे थ्रू लापता लेडीज़, बट वी डिड नॉट वांट इट टू बी ऑन द नोज। तो हमने बहुत अच्छी तरह से कॉमेडी, सटायर और कैरेक्टराइजेशन में उन सारे मैसेजेस को एम्बेड किया था। और राइटिंग से कब जुड़ी आप? राइटिंग, वेल, ऐसे देखने जाए तो तकरीबन 15 साल हो गए कि मैंने राइटिंग शुरू की। आई वॉज इनिशियली एन एक्ट्रेस ऑन गुजराती स्टेज, और उसके बाद जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो एक्टिवली एक्टिंग नहीं कर पाती थी, क्योंकि बहुत सारे शोज़ होते हैं, टूरिंग होती है, तो वो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो तब राइटिंग में मैंने ब्रांच आउट किया। और लापता लेडीज़ जो किरण राव द्वारा निर्देशक फिल्म है, तो वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? मतलब पहली फिल्म और वो भी किरण राव के अंडर में, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? वो बहुत ही एक्सीडेंटल जर्नी थी मैं कहूँगी, क्योंकि मैं गुजराती स्टेज पर काम करती थी, बहुत सारे नाटक मैंने लिखे हैं, उनमें से नेचुरल प्रोग्रेशन के तौर पे मैं हिंदी टेलीविज़न की तरफ मुड़ी, और फिर फिल्म्स मेरे पास आई। तो लापता लेडीज़ हैज़ बीन सच एन एक्सीडेंटल प्रोजेक्ट दैट केम टू मी। अचानक एक दिन फ़ोन आया कि हम ऐसी एक फ़िल्म बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लिखे, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड? और लाइन पे दूसरी तरफ आमिर खान सर थे, तो बहुत ही बड़ी बात हो गई मेरे लिए। तो इतनी प्यारी कहानी थी कि मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। So that's how I've not really planned anything. It has just come to me, and as I said, I'm grateful for that. आमिर खान से आप मिले हैं, राइट? तो जिस तरह से आप लिखते हैं किसी कैरेक्टर को विजुलाइज करके, तो आमिर खान जी उन्हें उसी तरह से निभाते हैं। और तो फिर कैसा, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा जब आप आमिर खान जी से मिले? लाइक डाउन टू अर्थ थे, या वैसे जैसे वो पर्दे पे दिखते हैं उसी तरह से थे, या कुछ अलग? बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल इंसान है वो किरण राव मैम। बहुत प्यारे लोग, बहुत इंटेलिजेंट लोग, और जिस फील्ड में वो काम करते हैं उस फील्ड का उनका अभ्यास जो है वो बहुत ही कड़ा है। तो उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला। आप उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, स्क्रिप्ट रिलेटेड कोई भी आपका
डाउट हो, कोई क्यूरियोसिटी हो, तो दे आर एक्सट्रीमली हैंड्स ऑन एंड एक्सेसिबल पीपल। तो इतने बड़े लोगों के साथ पहले ही प्रोजेक्ट में जब जुड़ने का मौका मिलता है तो एक नवोदित लेखक के लिए बहुत कुछ सीखने वाली बात हो जाती है। सो बोथ ऑफ देम आर अ फिल्म स्कूल बाय देमसेल्व्स, दे आर एन इंस्टीट्यूशन, सो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। और जो महिलाएं जो राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं उनके लिए कुछ खास संदेश अगर आप देना चाहें। राइटिंग थोड़ा मुश्किल पेशा है, मैं ना नहीं कहूँगी, क्योंकि आपको अकेले आइसोलेशन में काम करना होता है। ज़्यादातर कोलैबोरेशंस राइटिंग में मुमकिन नहीं होते। तो कहानियाँ पढ़िए, देखिए, आपके इर्द गिर्द इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, उनमें से किसी को पहचानिए। कीप योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स एट द हाईएस्ट। टू मेक इनरोड्स इनटू द फिल्म इंडस्ट्री और द टेलीविजन इंडस्ट्री इज़ नॉट रियली ईजी। तो आपका काम ही आपकी करेंसी है। तो बहुत सारे मंजे हुए जो लेखक हैं, उनके किताबें हैं, उनका काम है, वो ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है। सो आई थिंक मेक योर सेल्फ एक्सट्रीमली पावरफुल एज टू वॉट यू वॉन्ट टू से, एंड आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप यू दैट। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वडोदरा में आकर महसूस हो रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वडोदरा में, और मैं वडोदरा से ही हूँ, तो जो भी मैंने यहाँ पे अचीवमेंट किया, लोगों का जो प्रोत्साहन मिला, बहुत अच्छा लगता है वडोदरा में। तो आप जैसा कि एक साइकिलिस्ट हैं, एवरेस्ट तक आपने वो ऊंचाइयाँ छुई है, तो कैसे विचार आया कि आप एक महिला होकर ये सब भी कर सकते हैं? 17 मई 2023 को मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। उससे 7 साल पहले जब मैं स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाने जाती थी, स्पेशली गाँव के जो स्कूल्स हैं, वागोड़िया, आजवर, मास्टर्स करते वक्त, तो वहाँ पे एक टीचर ने मुझसे, एक प्रिंसिपल सर ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा था कि आपने स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या अचीव किया है जो आप बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट कर रहे हो और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हो। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक हुआ था कि अब कुछ भी करके स्पोर्ट्स की फील्ड में कुछ बड़ा अचीव करना है। तो मैंने मेरे कोच नीलेश पारोट सर से डिस्कस किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने, जब हमने डिस्कस किया तो फाइनलाइज़ किया कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है, क्योंकि मैं माउंटेनियरिंग फील्ड से पहले से जुड़ी हुई थी और मास्टर्स के साथ साथ भी मैं माउंटेनियरिंग करती रहती थी। तब डिसाइड किया था कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है। और ये जो साइकिलिंग की, जो मैंने अभी इंडिया टू लंदन साइकिलिंग किया, वडोदरा से लंदन, उसके लिए जब मैं माउंट मनासलू क्लाइम कर रही थी, उस टाइम पे मेरे जो कलीग्स थे, मैं 7000 मीटर से ऊपर की हाइट पे थी, और मेरे साथ जो फेलो क्लाइंबर्स थे वो जब मेरे से आगे क्लाइम कर रहे थे, तो एवलांच में दबने की वजह से कुछ की डेथ हो गई थी। सेम टाइम इंडिया में उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में 29 स्टूडेंट्स और टीचर्स जो ट्रेनिंग कर रहे थे, एवलांच आने की वजह से सबकी डेथ हो गई थी। और ये सब क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो मेरा ये जो साइकिलिंग एक्सपीडिशन था वडोदरा से लंदन का, 210 दिन का, जिसमें मैंने 16,888 किलोमीटर कवर किए, उसका एक मोटो था चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए अवेयर करना। ये मोटो लेके हम लोग यहाँ से निकले थे, और 1000 से ज़्यादा ट्रीज़ हमने खुद प्लांट किए, और हमें देख के लोगों ने लगभग 60-70 हज़ार ट्रीज़ प्लांट करके हमें वीडियोज़ और फोटोज़ भेजे। एवरेस्ट तक जाना, और जैसा कि आपने बताया कि इंडिया से लेकर लंदन तक आपने साइकिल पर सफ़र तय किया था, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो कुछ ऐसी चुनौतियाँ जिसका आपको सामना करना पड़ा हो इस दौरान? बहुत सारी चुनौतियाँ, जैसे मैंने जब माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया तो मुझे हाथों में फ्रॉस्ट बाइट हो गया था, उसकी वजह से मेरी फिंगर्स कट करनी पड़ी। और उसके बाद जब मैंने ये साइकिलिंग का लिया, तो साइकिल चलाना इतनी ठंडी में, इन फिंगर्स में इतना सेंसेशन होता है। तो रशिया में जो था वो -20 डिग्री टेम्परेचर भी आया, और बहुत विंडी टेम्परेचर, हमें स्नो स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म, हर एक तरह की तकलीफ़ें जो है ऐसे एडवेंचर्स में आती हैं। लेकिन अगर कुछ सोचा है उसको पूरा करना है तो उन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आप तो महिला सशक्तिकरण के एक मिसाल हैं ही, और आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं जो समाज में कुछ बदलाव लेकर आना चाहती हैं या कुछ नया करना चाहती हैं? आप एक बार अपना स्टेप बढ़ाइए आगे, अपना जो भी आप आगे बदलाव लाना चाहते हैं उसके लिए एक स्टेप बढ़ाइए। तो अगर आप उसको अच्छे से, अपनी पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, तो कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। कुछ भी हो, कहीं ना कहीं आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज के इस आयोजन में ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लापता लेडीज की लेखिका से लेकर एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक जाने वाली साइकिलिस्ट
जैसे दिग्गज महिलाएं शामिल रहीं और उनकी कहानियां ये साबित करती है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा सकती हैं। और आज का यह आयोजन का उद्देश्य सिर्फ प्रेरणा देना नहीं था, बल्कि एक नई सोच को जन्म देना था, जहां महिलाएं खुलकर अपने सपनों को जी सके और समाज में बदलाव की लहर ला सके। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM टीवी। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। आज का दौर है ग्लोबल कनेक्टिविटी का। हर उद्योग, हर बिजनेस चाहता है कि वो सिर्फ भारत तक सीमित ना रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बनाए। और खासकर MSME और स्टार्टअप्स के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। और इसी ज़रूरत को समझते हुए बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
इस वक्त हम बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल में मौजूद हैं, जहां अल्बर्टा कनाडा मार्केट में भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप को प्रवेश दिलाने के लिए एक खास सेमिनार का आयोजन किया गया है। बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने एक ऐसे सेमिनार का आयोजन किया जो भारतीय उद्योगों को कनाडा के अल्बर्टा मार्केट में एंट्री दिलाने का सुनहरा मौका देगा। यह सेमिनार बीपीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया, जहां इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, सरकारी प्रतिनिधि और बिजनेस लीडर्स ने भारतीय एमएसएमईएस और स्टार्टअप्स कैसे अल्बर्टा कनाडा में अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, इस पर महत्वपूर्ण चर्चा की। इस खास आयोजन में प्रमुख स्पीकर्स के रूप में संगठन पार्लियामेंट सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक्स कॉरिडोर डेवलपमेंट इलोना मित्र और इंद्रनील चौधरी के साथ बीपीसी प्रेसिडेंट विपिन चंद्र पटेल, कन्वीनर एस.के. रायजादा, इंडो कैनेडियन एंटरप्रेन्योर विशाल झवेरी और बीपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जीपी नामदेव मौजूद रहे। इस सेमिनार का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि एक स्पेशल स्पोर्ट्स सेल की भी स्थापना करना था, जो भारतीय एमएसएमईएस को सही मार्गदर्शन, नेटवर्किंग और ग्लोबल एक्सपोर्ट और ग्लोबल एक्सपेंशन में मदद करेगा। तो चलिए आज के इस आयोजन के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से जानते हैं कि क्या उद्देश्य है इस आयोजन का। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज का ये जो सेमिनार है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एक कॉरिडोर क्रिएट किया जाए। अल्बर्टा दैट इज़ कनाडा का बहुत ही पावरफुल स्टेट है बिजनेस के मामले में। इट्स वेरी इवॉल्विंग स्टेट, वो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। Alberta state is doing somewhere around more than 50% business of Canada, Canada country, and we want that our Indian industries and businessmen how they can take advantage of this great market which holds very high potential for expansion of their business, trade and investment. So this is the type of objective. We in the past we also connected US entry and how the people can enter in our Indian business can enter USA also. That program was also conducted by Baroda Productivity Council, and you have rightly put it that our effort is that global as far as today everything any country and every country wants to enter into business relations with each other, and every type of consumption and marketing and all those things has become international. And thereby, Baroda Productivity Council effort is to support this cross-border exchange, trade, and all those facilities and all those incentives which are available. And also, one very important thing is to get the data. What products can be consumed? Indian products can be consumed there, product and services, and what product and services can be provided by India, and similarly vice versa. So both the countries how they can benefit with each other. And the advantage with entering as far as Canada is concerned, because Canada, Mexico and USA have got these free trade agreement. So anyone, any industry enters into any one of the countries, they can take advantage of the market of other two countries as well. So all those type of facilities, how they can be made available. In fact, our President, Mr. Vipin Chandra Patel, had been recently in Canada, and we organized one webinar also with Indian businesses and Canadian businesses. That was Indo-Canada Chamber of Commerce organized by, and their Baroda Productivity Council represented as to what facilities we can give to Canadian industries as well as in India through Baroda Productivity Council. And similarly, what benefits and what type of facilitation can be given for the collaboration by Indian industries as far as exploiting or utilizing opportunities in India, in Canada, as well as in USA is concerned. So this is the objective of this today's program. Mr. Shane, Honorable Shane Gatson is the Parliamentary Secretary for this economic corridor, Alberta India Economic Corridor, who is present today, who has been invited for this particular program, along with other members of Alberta government, Canadian government and all those. They are here discussing, interacting with the industries here as to how our industries can, what facilities can be given, and how they can benefit, and how they can easily enter this Alberta Canadian market. गुजरात के अंकलेश्वर में लाखों लोगों को पानी की सप्लाई करने वाली उकाई दाहिनी तट नहर में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा केमिकल युक्त पानी छोड़ दिया गया है। गुजरात के अंकलेश्वर में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां लाखों लोगों को पानी
सप्लाई करने वाली उकाई दाहिनी तट नहर में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने जहरीला केमिकल छोड़ दिया है। इस घटना से हजारों लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। यह घटना अंकलेश्वर के बाकरोल गांव के पास हुई, जहां स्थानीय नागरिकों ने नहर में संदिग्ध रासायनिक कचरा बहता हुआ देखा। इस घटना के तुरंत बाद जागरूक नागरिकों ने अंकलेश्वर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इसकी सूचना दी। जांच के लिए मौके पर पहुंची जीपीसीबी की टीम ने पानी के सैंपल इकट्ठा किए और फॉरेंसिक साइंस लैब में भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि पानी में कौन सा केमिकल छोड़ा गया था और इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आज તમે જોઈ રહ્યા છો આ કેનાલ જે આપણે તળાવમાં જઈ રહી છે તેમાં સવારમાં રોજ આજે કેમિકલ યુક્ત કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીવાળા પાણીનું ટેન્કર અહીંયા છોડી ગયા છે। આ બનાવ પહેલી વખત નથી બન્યો, આ ત્રીજી વખત બનાવ બનેલ છે, છતાં કોઈ જાગૃતતા થઈ નહીં। જીપીસીબી ની મોંડી ટીમ પણ ક્યાંય નથી, જીઆઈડીસી ની સિક્યુરિટી ગાડીઓ પણ ક્યાંય નથી અને ઇન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખ એવું કે આ ત્રીજી વાર બનાવ બનેલો છે। એની સાથે ચેરમેન નોટિફાઈડના પાણીના ચેરમેન એ બધા હાજર છે। તો એ શું કરે છે? ખાલી રોટલા શેકવા માટે જ આવો છો તમે? પ્રજાના કામ કરવા માટે નથી આવતા? ઇન્ડસ્ટ્રીના દબાવ માટે તમે અહીંયા આવો છો? તો પ્રજાના માં હિત જો, પ્રજા પણ અહીંયા રહે છે, તમે પણ આમાં રહ્યો છો। તો હવે કોઈની પણ બેદરકારી દાખવી દેવામાં નહીં આવે અને પ્રજાને જાગૃત થવું પડશે। પ્રજા જો જાગૃત નહીં થાય તો તમારા આવનાર ભવિષ્યના બાળકો માટે પણ જોખમ છે। એટલે બહાર નીકળો, આવડા મોટા તોતિંગા ટેક્સ ભરો છો, આવડા મોટા તોતિંગા પાણીના પૈસા ભરો છો કે જે ઇન્ડિયામાં મોટા મોટા પૈસા છે। તો આ લોકોના પાપ જોવો ને, આ રોટલા શેકવા માટે જ આવે છે, કોઈ વાતનું એને કામ કરવામાં રસ નથી, પોતાના રોટલા શેકીને ઘરે જતા રહે છે। આ ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશનના કામકાજ છે। તો આપણે નોટિફાઈડ રહેણાંક વિભાગે જાગવું જોઈએ। અમે કોઈ રોટલા શેકતા નથી। આજ રોજ વહેલી સવારે મારી પર ટેલિફોનિક ચર્ચા થતા ત્યારે એક સ્થાનિક મારા મિત્રનો ફોન આવ્યો અને એમણે કીધું કે ભાઈ વડોદરાની ઉપર મેઇન કેનાલ અંદર કાળા કલરનું પાણીનું વહન થાય છે, તો તમારે અંકલેશ્વર જે પાણી ગામ તળાવની અંદર આવે છે એ તમે ચેક કરો। એટલે મેં મારા નગરપાલિકાના વોટર વર્ક્સના એન્જિનિયરને તાત્કાલિક જાણ કરતા એન્જિનિયર સ્થળ ઉપર પહોંચી મને મેસેજ કર્યો કે અહીંયા એવું કોઈ પણ પ્રકારનું પાણી કેમિકલવાળું આવ્યું નથી અને આપણું પાણી જે તળાવમાં છે તે પણ ક્લીન છે। હા, એટલે પછી મેં એમને એવી સૂચના આપી કે ભાઈ હાલ અત્યારે જે આપણો ઇનફ્લો વાલ છે એ બંધ કરીને આઉટફ્લો વાલ ખોલી નાખો કે જે કરીને પાણીમાં થોડું ઘણું બી કોઈ પણ પ્રકારનું કેમિકલ હોય એ સીધું વરસાદી કાંસમાં નીકળી જાય અને જ્યાં સુધી ઉકાઈ જમણા કાંઠાના જવાબદાર અધિકારી તરફથી આપણી પર કોઈ મેસેજ કે ફોન ના આવે ત્યાં સુધી આ પાણી આપણે આપણા તળાવની અંદર ઇન્વોલ્વ કરવાનું નથી।